بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وآله ومغفرته ورضوانه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك صلاة نعمية ذاتية ترفع بها درجته وتبين بها فضله وصل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصدق كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويجحدون آياتك ويكذبون رسلك اللهم خالف بين كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم وأنزل عليهم رزقك ونعمتك وبأسك الذي لا ترده عن القوم المؤمنين اللهم انصر جيوش المسلمين وسراياهم ومرابطيهم في مشارق الأرض ومغاربها إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اجعل التقوى بعدهم والإيمان والحكمة في قلوبهم وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه إله الحق وخالق الخلق اللهم اغفر لمن توفي من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولمن هو الأحق من بعدهم منهم إنك أنت العزيز الحكيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم فإنكم ذاكرون لمن ذكره واسألوا الله من رحمته وفضله فإنه لا يخيب عليه داعي دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دوسرے خطبے میں بھی میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام افراد کی خدمت میں تبریک اور تہنیت بھی پیش کرتا ہوں اور اپنے نفس کو تاکید کرتا ہوں تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے بہترین راستہ خدا سے تقرب کا تقویٰ ہے اس کو ہمیں اختیار کرنا ہے. آج کل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں. ایک عظیم بحران پوری دنیا میں آیا ہوا ہے اور جو جتنی بڑی طاقت تھی اس کے گھٹنے زمین میں زیادہ دھسے. یعنی جو اپنے طاقت کے زوم میں جتنا زیادہ گھمنڈ میں مبتلا تھا خدا نے اس کو اتنا ہی زیادہ ذلیل کیا اور ایک ایسے وائرس کے ذریعے سے جسے آپ ظاہری نگاہوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے اور دنیا کا دماغ ایک جگہ جمع بھی کر دیا جائے تو ابھی تک اس کی کوششیں یہ بتا رہی ہیں کہ ابھی تک اس وائرس کی صحیح جو صورتحال ہے کہ کیا کیفیت ہے اس کی، کیا صلاحیت ہے، کتنا خطرناک ہے، کس طریقے سے اس کو قابو میں کیا جا سکتا ہے، ابھی تک کوئی رائے حل دنیا کے پاس نہیں اور اگر ہے تو اس کو ابھی تک ظاہر نہیں. یقیناً جو بھی چیز دنیا میں خطرے کے طور سے، بیماری کے طور سے، مصیبت کے طور سے پیدا ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے. کوئی بیماری اگر ہوتی ہے تو اس کی دوا بھی ہوتی ہے. جستجو کرنا، تلاش کرنا یہ ہمارے فرائض میں سے ہے، انسانی فرائض میں سے. انسان کو چاہیے کہ اس کی جستجو کرے
اور ایک نہ ایک دن انسان اس پر قابو بھی پا لے. لیکن جو چیز باقی رہ جائے گی وہ اس وائرس کی بیماری اور وبا کی آڑ میں جو کھیل کھیلے جا رہے ہیں وہ باقی رہ جائیں گے. ان کو دنیا یاد کرے. لہٰذا اس سے بہت ہی ہوشیار رہنا ہے. یہ آپ کے دین پر بھی حملہ کر سکتے، اس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. آپ کے اقتصاد کو بھی ڈاواں ڈول کیا جا سکتا ہے. آپ کے علمی جو راستے ہیں ان کو بھی مسدود کیا جا سکتا ہے، ان کو بند کیا جا سکتا ہے. لہٰذا اس دوران میں جو سمجھدار اور ہوشیار انسان ہے اس کو چاہیے کہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے اور انہی حالات میں بغیر اپنے آپ پر کسی بھی طرح کا ذوق یا کمزوری کو حاوی کرنے کے بدلے میں اسے چاہیے کہ ان حالات میں سروائیو کرنے کا اور زندہ رہنے کا اور ترقی کرنے کا جو راستہ ہے اس کو تلاش کرے. اس میں سب سے پہلی چیز جو نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے اس نظریے سے، جو بیماری آئی اور مجھے ہو گئی، میں مر گیا تو مر گیا، ختم ہو گیا. پہلا ایک نہ ایک دن مرنا تھا. 1 سال پہلے مر گیا ان کے لحاظ سے، میں تو اپنی ٹائم پہ مرا. ان کے لحاظ سے بھائی کورونا سے مر گیا، کورونا نہیں ہوتا تو شاید بچ جاتے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں، جس کا جو وقت لکھا ہے وہ سب جو مر گیا وہ اپنی اچھی جگہ. لیکن جو زندہ ہے ان کے لیے جو یہ حالات ہیں، ان کے بچوں کے لیے خاص طور سے پڑھائی متاثر ہو. اور پڑھائی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس وقت متاثر ہو تو اس کا اثر جو ہے وہ آئندہ نسلوں تک جا سکتا ہے. اس لیے ان حالات میں نوجوان طبقہ خود اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کے والدین پڑھائی کے نظام کو مضبوط رکھیں کسی بھی طریقے سے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ پڑھ لیں، آن لائن آپ کلاسز جوائن کرنے سے نہیں. اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں کم سے کم اگر آپ کے آس پاس کوئی عالم ہے اس فن کا، اس سبجیکٹ کا، تو اس سے رابطے میں رہیں. علمی لحاظ سے کوئی کمزوری کورونا وائرس کے ذریعے سے ہماری قوم میں نہیں آنی چاہیے. یہ ایک پہلی چیز. کیونکہ اگر وائرس نے اس علمی پیکر کو نقصان پہنچایا تو یقیناً پھر اس کا اثر آئندہ ظاہر ہوگا اور وہ اثر اچھا اثر نہیں ہوگا. یہ دوسرا، یہ ایک بہترین ذریعہ ہے پروردگار کے سامنے اس کے نمائندے بننے کا. خداوند عالم تمام انسانوں کو، تمام جانداروں کو، تمام مخلوقات کو روزی فراہم کرتا ہے. اس دوران میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی نوکریاں ختم ہو گئی، جاب لیس ہو گئے. پہلے بھی یہ مسئلہ تھا اور ہر ملک میں ہے تقریباً، ہمارے ملک میں زیادہ. بہت سے لوگ ہیں جو جاب لیس ہو گئے. نیا دور جو آ رہا ہے اس میں ایک خاص طبقے کے لیے نوکریوں کی کوئی گنجائش نہیں. جو سوچ حاکم ہو رہی ہے اس میں نئے کسی بھی فرد کو کہ آپ کو نوکری مل جائے اس کے چانسز بہت کم ہیں. مگر یہ کہ ایکسٹرا آرڈنری آپ کے پاس کوئی صلاحیت کوئی ہونا، کوئی علم ہو تو اس کے ذریعے سے آپ اس منصب پر فائز رہے جب تک کہ آپ کے مقابلے میں کوئی دوسرا اس لیول کا نہیں آیا. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہماری خاص طور سے یہ کر رہی ہے کہ 50 سال اگر ان کی سروس ہو گئی ہے تو ان کی جو گزشتہ رپورٹ ہے اس کا جائزہ لیا جائے، سمیکشا کی جائے اور اس کے بعد میں ان کو زبردستی ریٹائر ہونے پر مجبور کیا جائے. جو خود ایک مسئلہ ہے. جو انسان ریٹائر ہو جاتا ہے اس کے جو سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اس میں ایک بریک لگتا ہے اور اگر اسے وقت سے پہلے ریٹائر کر دیا جائے تو یہ بھی اس کے لیے مسئلہ بنتا ہے. لہذا جو لوگ اس مرحلے میں ہیں ان کو چاہیے کہ ریٹائر ہونے کے بعد کے سلسلے میں بھی اپنے نظام کو چاق و چوبند بنائیں کہ اس کے بعد سے آپ کس طریقے سے اپنی آمدنی کو اس لیول پر باقی رکھ سکتے ہیں جس لیول پر آپ ریٹائر ہونے سے پہلے تھے. یہ پلاننگ کی جا سکتی ہے. یہ کہتے ہیں آپ اس میں
सोच सकते हैं, गौर कर सकते हैं अपने जो आपके शौक़ हैं, जो आपका ज़ौक़ है, जो आपका इल्म हुनर है, जो सलाहियतें हैं, उसके ज़रिए से आप इस सिलसिले में सोच सकते हैं और अपने आइंदा और मुस्तक़बिल को बेहतर बना सकते हैं। उस वार से अपने आप को महफूज रख सकते हैं जो दुश्मन ने ये सोच कर कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये तबाह हो जाएंगे, उस दुश्मन के उस नक्शे को आप नक्श पर आप कर सकते हैं। ये एक दूसरा मसला। फिर इसी सिलसिले में आगे बढ़ाते हुए कि मैंने कहा था कि खुदावंद आलम रोज़ी फराहम करता है, तो जो लोग इस दौरान साहिब हैसियत हैं, उन्हें खुदावंद आलम ने या पहले से या इस दौरान उन्हें नेमतों से नवाजा है, उनके हालात अच्छे हैं, वो कोशिश करें कि अपने आस पास अपने रिश्तेदारों में, अपने क्या कहते हैं कौम के दूसरे जगहों पर जहाँ पर इस तरह के कमज़ोर लोग पाए जाते हैं, उनको सपोर्ट करें। अलबत्ता सपोर्ट दो तरह का सपोर्ट, एक सपोर्ट जो है वो हो सकता है हमारी कौम को फ़कीर बना दे और मांगने खाने की आदत डाल दे, इस एहतियात के साथ कि उसके अंदर ये जज्बा पैदा ना हो कि अब तो हमें बैठे बैठे मिलने लगा है, तो हमें करने की कुछ ज़रूरत नहीं, उनकी मदद की जाए। दूसरे जो मदद है आपकी वो एक प्लानिंग के साथ होनी चाहिए, ताकि मदद सिर्फ वक्ती तौर पर ख़त्म ना हो जाए, वो ऐसी मदद हो कि जिसका असर उसको हमेशा आइंदा भी मिलता रहे। उसके लिए कौम के बुजुर्गान बैठ सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ अंजुमनें, सोसाइटियाँ जो और दूसरे फलाही काम करती हैं वो इस सिलसिले में गौर कर सकती हैं, प्लानिंग कर सकती हैं और इस मैसेज को अपनी कौम में फैला सकती हैं और उनकी मदद इस तरीके से की जाए। क्यों? क्योंकि ये बात हमेशा बाकी नहीं रहेगा, लेकिन हमारा किरदार, हमारा अखलाक, हमारी जो शख्सियत है वो पहचानी जाए कि हमने इस दौर में क्या किया है। अगर हम गरीबों से मुंह फेर लेते हैं, अगर हम गरीब रिश्तेदारों से मिलना जुलना आजकल छोड़ देते हैं, तो ये इस्लामी तरीका नहीं है, ये अहले बैत की रविश और सीरत नहीं है। हमें चाहिए कि हम उन रिश्तेदारों से इस दौरान ज़्यादा करीब हों जो कमज़ोर, ताकि उनको भारत मिलती रहे और जो एक बीमारी डिप्रेशन की होती है उसमें मुब्तला न हो। कोई जवान भी ये न सोचे कि ये वायरस आ गया तो अब तो हम बेकार हो गए, नहीं। खुदावंद आलम जो आपको पहले रोज़ी देता था, रिस्क देता था, आज भी आपका खुदा वही है, कल भी वही रहेगा। हाँ, फर्क क्या है? अगर आप उससे अभी तक जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। वो तकसीम कर रहा है नेमतें, अगर उससे हमारा राब्ता कमज़ोर है तो हम उस राब्ते को कभी करें ताकि हम ज़्यादा फैल जाए। हमारा फरीज़ा इस वक्त यही है कि हम खुदा से ज़्यादा नज़दीक हों। खुदा वही है जो पहले रोज़ी देता था, आज भी दे रहा है और कल भी देगा, लेकिन एक रोज़ी वो है कि जो वो सिर्फ और सिर्फ आम रोज़ी दे रहा है या हमसे नाराज़ होकर हमें रोज़ी दे रहा है अपनी बुजुर्गी और बुजुर्गवारी की बुनियाद पर, और एक रोज़ी वही है कि वो खुश होकर हमें दे रहा है। तो हमें चाहिए कि हम वो रोज़ी हासिल करें जो वो हमें अपनी हिदायत और मर्जी और खुशहाली की हालत में दे। वो चाह रहा है कि मैं इस बंदे को अता करें, एक ही नहीं उसने गलत किया लेकिन भूखा है तो इसको मिल जाए। इस तरीके का जहन सोच हम लेकर आगे बढ़े, ये एक चीज़। दूसरे बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ भी हमें खामोश बैठने की ज़रूरत नहीं है। वो भी हमारा फरीज़ा है जो अहले बैत से हमने सीखा है। जो तमाम अंबिया ने, पैगम्बर ने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनके नाम से ये ईद मनाई जाती है और खुदा को वो अमल इतना पसंद आया जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल का कि उसने पूरी दुनिया को, रहती दुनिया तक उन सुन्नतों पर अमल करने की ताकीद फरमाई। उन पैगम्बरों, उन इमामों का जो तरीक़ेकार रहा है वो यही रहा है कि हमेशा ज़ालिम ज़माना के मुकाबले में वो खड़े रहे, चाहे उनको आग में जलाया गया है, चाहे उनको आरे से जलवा दिया गया है। और जो सबसे बड़ा मसला है जिसके लिए हमारी पूरी कौम
इस वक्त परेशानी में मुब्तला है और सोच और फिक्र में मुब्तला है, वो कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि उनका गम हर साल हम मनाते थे, इस साल क्या होगा। लेकिन गम हो सकता है कि हुकूमत की तरफ से पाबंदी लगाई जाए मुख्तलिफ सूबों में, और आपको जुलूस निकालने पर पाबंदी हो, या अफराद जो शिरकत करते हैं उनकी तादाद पर कोई पाबंदी हो, मजालिस पर पाबंदी हो, तो ये हो सकता है। वक्ती तौर पर ये पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं, और शायद अगर मैंने अर्ज़ किया कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक ख़ास तबके से मखसूस नहीं है तो उनको मानने में भी कोई हरज नहीं, लेकिन आज़ादारी ख़त्म नहीं हो। इस दौरान में हम आज़ादारी किस तरीके से करें, उसके लिए हमें सोचना है। उसमें यह कि जो लोग घर में मौजूद हैं, मरसिया पढ़ते हैं, नोहा पढ़ते हैं, मस्जिद पढ़ते हैं, वो अपने अहले ख़ानदान को लेकर बैठे और जो करबला का वाक़या उनके सामने, बच्चों के सामने बयान करें, उनको नोहा घर में पढ़ें। यानी बजाय इसके कि मोहल्ले में एक इमाम पढ़ा था तो एक मजलिस हुआ करती थी, अब घर घर मजलिस हो। आज़ादारी खत्म नहीं होनी। अगर अलम हम सड़क पर लेके निकलते थे तो जरूरी नहीं कि सड़क पर लेके, अगर पाबंदी है तो सड़क पर लेकर ना निकले क्योंकि वो बहाना मिल जाएगा दुश्मन को। उसके बदले में हमें चाहिए कि हम घर में उस अलम का एहतराम करते हुए उस साहिब अलम के किरदार को याद करें और उसको बयान करें, उसको अपनी सीरत में डालने की कोशिश करें। लेकिन बीमारी जो भी हो, वो कोई मजहब और फिरका या कोई छोटा बड़ा नहीं देखे। बीमारी आती है तो सब जगह रहती है, उससे बचना है आपको, उसका लिहाज रखना है। अगर वाकई डॉक्टर से कहते हैं कि आप फासले बनाए रखिए, तो अगर जुलूस निकालने की इजाज़त दी जाती है तो उसको भी आप फासला बनाए रखें। तबरुकात को अगर चूमने से कोरोना फैल सकता है तो इस बार तबरुकात को आप बोझा न दें, क्योंकि फर्ज कीजिए मुझे कोरोना हो रहा है, मैंने ताबूत को हाथ लगाया, फिर दूसरा आया वहाँ पर और उसने हाथ लगाया, कोरोना यहाँ से मुंतकिल हो गया उसके लिए, तो मैं एक अज़ादार के लिए बायस ज़हमत बना, बायस बीमारी बना, ये मेरे लिए शरअन जायज़ नहीं है। लिहाजा बहुत ज़्यादा जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर अलम निकल रहा है तो फिलहाल उसको बोसा न दे, या अगर बोसा दे तो जो तरीका है कि सैनिटाइज करके आप अपने हाथ को फिर आप वहाँ पर हाथ लगाएं। यानी जो भी हिफाज़त सेहत के कवानीन और दस्तूर और हिदायत हैं गवर्नमेंट की तरफ से या डॉक्टर्स की तरफ से, उनको मानना हमारा फ़र्ज़ है। उसमें हमें जज्बात में नहीं आना कि नहीं हम तो साहब जैसे पहले करते थे वैसे करेंगे। मैंने अर्ज़ किया कि हालात के लिहाज से हमें अपने आप को डालना है, लेकिन अज़ादारी की तरफ से आप बिल्कुल मायूस ना हो और नहीं ये सोचेंगे साहब क्योंकि आप वहाँ मस्जिद नहीं हो रही तो अब हम करिए। आप घर में मरसिया पढ़िए, घर में दुआ पढ़िए, घर में किताब लेकर करबला के वाक़यात को, जो उसके तफासीर है करबला के वाक़े की, उसको आप घर में पढ़ें। औरतों, बच्चों और कहते हैं जो भी लोग आस पास हैं उनको उसका पैगाम दे, उससे आप करना। दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा वो दुनिया के जालिम अफराद से, कि जालिम अफराद ये समझ लें कि जुल्म के पैर कभी भी टिकते नहीं, बहुत छोटे पैर होते हैं। जुल्म का एक न एक दिन खात्मा ज़रूर होगा। जुल्म का साथ देकर अपने आप को तबाही के दहाने तक न ले। ये दुनिया खत्म होने वाली है, कोई यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं आया है। बड़े बड़े फिरौन, बड़े बड़े बादशाह आए, अपनी अपनी सोच लेकर आए, हर इलाके में आए, लेकिन आज उनका नाम निशान नहीं है। अगर उनका नाम लिया भी जाता है तो साथ में लानत का तौब उनको पहनाया जाता है। लिहाजा अपने आप को उस मरहले में दाखिल न करें कि न दुनिया में वो इज्जत पा सके और न मरने के बाद उनकी कोई इज्जत कर सके। जुल्म का साथ देना छोड़ें, हक की बात को कबूल करें और दुनिया पर जुल्म करने से बाज आए। ये चाहे अमेरिका हो, चाहे इसराइल हो, चाहे और कोई दूसरा मुल्क जो उनका पिट्ठू है वो हो, ये अपने आप को पहचाने, अपनी
औकात में रहें। और आप देख भी लिया उन्होंने कि खुदा बंदे आलम अगर ये चाहे तो वो छोटे से वायरस के ज़रिए से उनके बड़े बड़े टैंक, बड़े बड़े कहते हैं जहाज, बड़े बड़े बेड़े, उनको 2 कौड़ी का बना कर रख देता। इस वायरस के मुकाबले में 2 काम नहीं आती है। इस वायरस के मुकाबले में सुपर हाफ ड्रोन काम नहीं आएगा। इस वायरस के मुकाबले में जो दरियाई बेड़े हैं, फौजी बेड़े हैं, वो कारगर नहीं होते। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ कारगर साबित हो सकती है वो अपने गुनाहों का एतराफ़, अपने जुल्म का एतराफ़, उससे परहेज और खुदा की बारगाह में गिरियोज़ारी और तौबा, ये इसमें काम आ सकता है। क्योंकि निज़ाम कुदरत उसके हाथ में है। वो अगर चाहेगा तो इस बीमारी और इस वबा से भी इंसान को छुट्टी मिलेगी। आज दुनिया में मुख्तलिफ कौमों को सताने का सिलसिला शुरू किया गया, अलग अलग मुल्कों में अलग अलग तरीके से, लेकिन सताने वाला एक ही है, एक ही ग्रुप है जो पूरी दुनिया को सता रहा है, और वो है अमेरिका और इसराइल। ये वो वायरस है जो कोरोना से ज़्यादा खतरनाक, जो कोरोना से पहले से है, और अभी भी जो कमज़ोर ज़हनियत के इंसान हैं वो इस वायरस से अमेरिकन और इसराइली वायरस से मुतासिर हो रहे हैं और उनसे असलहा खरीद रहे हैं, उनके दावे बनते जा रहे हैं, अपनी जो ज़िंदगी है उनके हवाले करते जा रहे हैं। ये समझ लें कि कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक वायरस ये है क्योंकि इनके यहाँ इंसानियत का दुख दर्द नहीं पाया जाता। इंसानियत के सिलसिले में कोई हमदर्दी उनकी नहीं पाई जाती है। उनके सामने सिर्फ अपनी ज़िंदगी है, अपनी ताकत और कुदरत है, अपना पैसा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब दुनिया में नक्शों से मुल्कों को हटाया जा रहा है, घटाया बढ़ाया जा रहा है। फिलिस्तीन का जो इलाका है वो गूगल ने अपने नक्शे से हटा दिया। गूगल नक्शे से हटा दिया, इससे क्या दुनिया से हट जाएगा?